बहुत बढ़िया काम किया अरबाज जी ने, और इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू वर्क विथ हिम। और ये मेरा पहला स्क्रीन शेयर था उनके साथ, एंड वी हैड अ लवली टाइम वर्किंग दैट कंटिन्यूअस schedule for a very long time. And there's a little secret to it also. My business manager Sharmishta, she's a you know her very well. So she is a die-hard fan of the entire family of the Khans, and that's why whenever Arbaz meets Sharmishta, is always अरे क्या हुआ हमारा तो गैलेक्सी में बात होगा. Sometimes I'm very fearless and inhibitionless, because when it comes to embracing a character which I have not done, or something which I have not explored, a different world altogether, because as an actor I also want to get challenged. With this character I felt that though it's a horror genre, but I felt that there is something which I can discover myself, and also the film can discover me. कि ऐसा कुछ नहीं होता, और क्या लाजवाब एक्सप्रेशन है, आपको यही लगेगा ये मानती नहीं, ये क्या पागलपन है, वो जो एक्सप्रेशन दिल से आ रहे हैं ये बताता है ये कितने बड़े अदाकार हैं. Hi, I'm Rituparna Sengupta, and my new movie is coming on the 14th of November, Kal Trighori. Please be prepared to watch the film in the theatres. I will be looking forward to it. And you're watching me on Sunny G Show by Luft the Air. Stay tuned. दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इतिहास को दोहराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट माई इतिहास विद मैम ओवर हियर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा. जस्ट आई थिंक 2 months back or 3 months back we shot a lovely podcast at her home in Kolkata, and we discussed about this one little line where she talked about her upcoming film. And I'm so glad that today, after a few months, when the film is all set to be out, I'm sitting with her over here alongside sir, the very charming and talented director and writer of the project. We are discussing about Kal Trighori, ladies and gentlemen. सबसे पहले डेट मार्क कर लीजिए, 14 November is the date, आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, and we are going to be talking about the project and a lot more over here. सबसे पहले स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे सर एंड मैम. Thank you so much. धन्यवाद भैया. My pleasure. I know you have been doing a lot of interviews. Questions है कि क्या experience था, this, that, etc. But then I love this line which says some myths are real, right? What is perhaps that one myth about yourself that you would love it if it turns to be real? And I'll come to you as well after that. Oh, not me. Because celebrities, popular figures, personalities who have been there for a long time, बहुत myths उनके बारे में बनते हैं, right? What is that one myth about yourself that you would love it if it turns out to be true? मेरे पता नहीं मेरे साथ कोई मिथ है कि नहीं, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि मेरी फिल्म्स हमेशा मेरा फिल्म्स को अवार्ड्स मिलते हैं, एंड सो मैं यही चाहती हूँ कि इस फिल्म को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले, एंड ये मिथ दैट हैज ऑलवेज बीन देयर विथ मी, सो कम्स ट्रू विथ एवरी फिल्म ऑफ माइन. ये तो टू एन एक्सटेंट. फिर तो ये बहुत बढ़िया डायलॉग है, सम मिथ्स आर रियल. ये सच में होती ही है. वही सम मिथ्स आर रियल, ये मिथ नहीं है. तो आपने ये मिथ नहीं है, ये सच में होता है. हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है जो हम मिथ अभी बता रहे हैं. बट दैट्स व्हाट. एंड जब आपने बोला कि अवार्ड्स एंड ये, तब सर के शक्ल पे जो मुस्कान आया वो मैंने देखा, एंड आई एम प्रीटी श्योर everybody would love it, because बहुत मेहनत लगता है to put up work together. You're the writer as well, you're the director as well. I want to understand this कि because मैं दोनों ही नहीं हूँ, राइटर ना डायरेक्टर दोनों ही होता है. I want to understand कि जो इंसान लिखता है वही जब उसको पर्दे पे लाता है, काम to an extent easy होता है, या फिर you question yourself a lot because आप सोचते हो कि अरे यार मैं लिखते वक्त तो ये सोचा था, डायरेक्शन पे क्यों नहीं ला पा रहा हूँ. Is it the other way around as well? मैं गलत हो सकता हूँ. सबसे ज़्यादा बेहतर जिसने लिखी है, जिसने कल्पना किया है जी, वो डायरेक्ट करता है तो ज़्यादा हेल्प मिलती है. कोई बहुत टैलेंटेड आदमी, बहुत से लोग रहेंगे तो उससे बेहतर भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम
उस बंदे के लिए जिसने वो कहानी लिखी है, उसके दिमाग में एक विज़न होता है जो सिर्फ शब्दों से पूरा नहीं हो सकता। करेक्ट। वो दिखाया है, बहुत अंधेरा था, मैंने बोल दिया आपको कि बहुत अंधेरा था, हवाएं चल रही थी, तो आपने अपने दिमाग से सोचा अब मैं बहुत हवाएं चलने के लिए कैसे पर्दे निकलेंगे, कितना अंधेरा वहाँ कैसे है, वो एक विज़न होगा, तब उसका डर लगेगा। करेक्ट। तो जो लिखता है मेरे ख्याल से उसको डायरेक्ट करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होती है, ज़्यादा सुविधा होती है और असरदार ज़्यादा होता है। बिल्कुल असरदार ज़्यादा होता है। जब आप मैम के पास प्रोजेक्ट का ऑफर लेके गए थे, यू न्यू हर बिफोर हैंड या फिर आप इसके टाइम पे आप उनको पहली बार हम पहली बार मिले थे। पहली बार मिले थे, राइट? सो जब आप जा रहे थे आपके दिमाग में ये ज़रूर होगा, हियर इज दिस आइकॉनिक एक्ट्रेस ऑफ इंडियन सिनेमा, बंगाल में तो सुपर लेजेंड है, ये है वो है, क्या नोशन था मैम को लेके? बिकॉज मैं पहले जब मैम को नहीं जानता था, ऑफ कोर्स शी इज स्टिल द आइकॉन, जानने के बाद आई रियलाइज शी इज अ सुपर हम्बल ह्यूमन बीइंग एज वेल, राइट? कौन से वो नोशन आपके टूटे अबाउट हर जो गलत साबित हुए इवेंचुअली? ऐसा है, देखिए मेरे पास बहुत सही बता रहा हूँ, आप गलत, मेरे को जो माधुरी का कैरेक्टर मैंने सोचा ना, तो ऐसा नहीं कि मैं बदल बदल के कहीं पहुंचा, मुझे सबसे पहले इनका नाम दिमाग में आया। मैंने जब अपने सर्कल में बातचीत की तो बोले आप गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। मैंने कहा वो क्यों? वो ये हॉरर वॉरर और भूत प्रेत की फिल्में ना करती हैं, वो इसको अलग समझेंगे और वो आपके हाथ में इस कहानी के लिए नहीं आएंगे। वो बहुत बढ़िया कलाकार हैं, गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो मैं पहले ही इनके पास जाने के पहले ये सोच लिया था कि भाई बात बेहतर हो जाए तो बेहतर है। और शुरुआत ऐसे हुई भी, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने हमें बुलाया, स्वागत किया, उसमें एक नंबर है। बंगाल के लोग वैसे ही उस मामले में बहुत आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्वागत के बाद में उन्होंने कहा नितिन जी ऐसा है, आपकी फिल्म यदि हॉरर है तो मैं क्या हॉरर फिल्में नहीं करती हूँ जी, तो हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जुड़ेंगे। Yeah. तो वो ऐसा लगा जैसे ये इमारत बनने के पहले ही ढह जाएगी। फिर देखिए मैं कितना खुशकिस्मत होऊंगा जब ये बात पूरी हुई होगी तब। आप अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि ये सब that ऑलरेडी टर्न इनटू रियलिटी। सच है। बट आप अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि कितना बेहतरीन। ये भी आपने नहीं सुना है, बाकी बहुत से लोग सुन चुके। इन्होंने जब ये कहानी, जब मैंने फोर्स किया पूरी सुन ली, तो बोले ये हॉरर नहीं है, ये इंटेलिजेंट हॉरर है। अरे वाह, ये इन्होंने नाम दिया, मैं सब जगह बोलता हूँ जब ये नहीं होते हैं तब भी, तो ये बहुत बढ़िया नाम है। जब आप कहानी देखेंगे तो लगेगा कि बहुत ही बढ़िया नाम दिया है। ये एक्चुअली नया जॉनर बना सकते हैं, जॉनर बना सकते हैं, राइट? इंटेलिजेंट हॉरर, दैट्स व्हाट इट। बट एक्चुअली इट इज, Actually it is. आप मूवी देखेंगे, आप देखना। element which qualifies for a horror, but it's very intelligently done. But yeah. Ma'am, tell me very honestly this, and I know you always give answers from the heart. Like so many years of incredible, career, love from people, etc. At this stage, how are you so fearless when it comes to experimenting? Because sir said कि मैं जब मैम के पास गया, सब लोग ने बोला कि वो नहीं करती ऐसी कहानियाँ. You also initially thought कि शायद I won't. So I am expecting or I am assuming कि this is a brave experiment from your end, right? How are you so fearless? Yeah, because sometimes I'm very fearless and inhibitionless. Because when it comes to embracing a character which I have not done, or something which I have not explored, a different world altogether. Because as an actor, I also want to get challenged. And also I feel that if the actor is not getting challenged, or if they don't feel the load of the role on their head, they can't deliver it as much as as much conveniently or convincingly. बिल्कुल. So I think with this character, I felt that though it's a horror genre, but I felt that there is something which I can discover myself, and also the film can discover me. Absolutely. So that's a very interesting relationship, and I felt that was something I wanted to do. And नितिन जी जो जैसे मतलब ये पूरी चीज़ को इतना अच्छी तरीके से he has मतलब समीटा, I think that's a beautiful way of focusing on each and every character on a horror film is something very interesting. Something that the horror element is there, लेकिन horror element के साथ साथ जो characters है उसको भी इतना अच्छा से सवारा, intelligently सवारा उन्होंने. लेकिन the thing is that every character has a beautiful backstory, every character has something to play in the whole plot, and also give some sort of give away something for the remaining space to get it for the future. I know you are fearless. इसको इंटरप्ट करता हूँ, एक बात इससे रिलेटेड है, इसलिए बिल्कुल ये कितने बढ़िया अदाकारा हैं, इसका जवाब यहाँ अभी और बड़ा मिलता है. कैसे पता है? देखिए, आपको यदि आप गुस्से वाले हैं, यदि आप
ऐसे रोल करना चाहते हैं जिसमें आपको गुस्सा आ जाता है बहुत आसानी से, तो थोड़ा जल्दी कर लेंगे, आपका वो काम है, चेहरे पे एक्सप्रेशन आ जाएंगे। ठीक है, आज इन्होंने क्लियर किया, देखिए कि ये ऐसी सब चीज़ें होती है, बराबर है, ये ऐसा मान रहे हैं, और इन्हें मूवी में ये रोल करना है कि ऐसा कुछ नहीं होता। और क्या लाजवाब एक्सप्रेशन है, आपको यही लगेगा ये मानती नहीं, ये क्या पागलपन है, वो जो एक्सप्रेशन दिल से आ रहे हैं, ये बताता है ये कितने बड़े अदाकार हैं, है ना। मैं उसी तो पे मैंने गलती नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल कोई गलती नहीं है। कौन बोल रहा है गलती? एब्सोल्युटली कौन बोल रहा है गलती है? सामने आओ, इधर आके हम देखते हैं, ढूंढते हैं। यू नो सर, आई वांट टू कम एग्जैक्टली टू दिस कि मैम के लिए नया एक्सपेरिमेंटल जोन था, बट यू ऑलवेज हैड दैट कन्विक्शन। कोई ऐसा मोमेंट बताइए ऑन सेट जहां पे शी लिटरली स्टन्ड एंड सरप्राइज्ड यू अपने परफॉर्मेंस से, जहां पे आपने सोचा कि यार जो शायद बार मैंने सोचा था उन्होंने वो भी क्रॉस कर दिया। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, कैसे बहुत बढ़िया सवाल किया। ये हॉरर जॉनरे की मूवी है, इसमें डरने के एक्सपीरियंस, अचानक कुछ हुआ है नहीं, ये सब कुछ दिखाना है, और ये बहुत बढ़िया कर रही थी। इनको बहुत ही बोल्डली दिखाना है, मैं नहीं मानती, जो गुस्सा आना चाहिए, ग्रज आना चाहिए, सब कुछ आ रहा था। उसमें एक इमोशनल सीन आया, मैंने कहा आपको यहाँ पे किसी को याद करते हुए और इमोशनल सीन देना है। यकीन मानो उनकी एक्टिंग देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्या एक्सप्रेशन थे, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। वो सीन आप मूवी में देखना, बिल्कुल। वो जब किसी को हाथ फेर करके याद कर रही हैं तो आप डूब जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे ये किसी को याद करके सच में रो रहे हैं। जैसे किसी को रोता देखकर बहुत से लोग मूवी में रोने लगते हैं ना, तो मैं वहां सेट पे डायरेक्ट कर रहा था, सब कर रहा था, और मेरी आंखों में से आंसू आने लगे जैसे किसी को याद कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, वी आर लुकिंग, तो वो याद रह गया मुझे, दैट इज वेल, आई एम श्योर। मैम, अरबाज सर इज आल्सो पार्ट ऑफ द फिल्म। आप दोनों का कैरेक्टर जो है, हाउ इज इट पोजीशन, लाइक आर यू ऑपोजिट ईच अदर की क्या सीन है? थोड़ा बहुत व्हाटएवर यू कैन से। दैट्स अ सीक्रेट, ओके ओके, एंड लेट इट बी अ दैट्स अ सीक्रेट। सरप्राइज इन द फिल्म। तो मुझे लगता है कि सब लोग जाके जब देखेंगे तब उनकी दिमाग में क्या चलेगा, वो उसके दूसरे देखकर आई वांट टू सी। तो अभी मैं नहीं बताऊंगी, but he's got a direct, but he has got but मान लो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, क्या बात लेकिन अभी मैं इसको रिवील नहीं करूंगी। बट ही प्लेज अ डॉक्टर इन द फिल्म, ये मैं बोल सकती हूँ। और बहुत बहुत बढ़िया काम किया अरबाज जी ने, और इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू वर्क विथ हिम। और ये मेरा पहला स्क्रीन शेयर था उनके साथ, एंड वी हैड अ लवली टाइम वर्किंग दैट कंटिन्यूअस शेड्यूल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड ऑल्सो आई थिंक यू नो शॉट के बाद भी हम लोग एक साथ खाना खाते थे, एंड वी हैड लवली, आई यूज्ड टू गेट मिठाई, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ गुड़ का मिठाई, होल सेट के लिए भी लेके आए थे, सबके लिए। एंड ऑल्सो आई थिंक गुड़ की मिठाई बहुत ही पसंद है उनको, एंड वी हैड अ लवली टाइम। एंड दिस फिल्म, आई थिंक अरबाज जी ने बहुत सारे फिल्म्स किया, लेकिन दिस फिल्म एक्चुअली अरबाज जी का बहुत ही अच्छा अदाकारा है। इनफैक्ट आपका एक बंगाली मूवी का प्रीमियर हुआ था मुंबई में, मैं भी आया था वहाँ पे, आई सॉ हिम कमिंग ओवर देयर एज वेल, सो दैट गोज टू शो दैट मूवी शूटिंग खत्म होने के बाद भी द इक्वेशन एंड द म्यूचुअल रिस्पेक्ट दैट रिमेन्स, राइट। ये अरबाज जी भी बोल रहे थे कुछ देर पहले कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक होता है कि एक यू नो फेमिलियरिटी और एक वार्मथ, तो वो सबके साथ नहीं होता है। तो हमारे बीच में एक अच्छा कनेक्शन है, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट हाउ वाज दैट आइस ब्रेकर, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर, यू नो, यू हैव डन वेल इन योर ओन स्पेस, पहली बार जब मिलते हो आइस ब्रेक कैसे होता है वो, हाउ वाज इट इन हिज केस विद यू? Oh, of course, he had heard about me. Of course, he knew me Who hasn't, ma'am? as a person, and I've done such work in my field. So he has always been very appreciative of my work, and he said that, you know, I always felt that you're a great actor, but feeling very good that we can work together. Actually एक space होता है कि हम लोग, that is also I think a combination of energies, जैसे नितिन जी ने एक जगह सबको लेके आया, and I think that energy is also very different कि अरबाज जी, मैं like Aditya Srivastava, then Mahesh Manjrekar, like all the good energies were together, Rajesh Sharma, and I think with Arbaz I think it clicked very well, and we had lovely chat over a lot of things, and there's a little secret to it also. My business manager Sharmishta, she's a
you know her very Of well. course. So she is a die-hard fan of the entire family of the Khans, and that's why whenever Arbaz meets Sharmishta, he's always, अरे क्या हुआ हमारा तो गैलेक्सी में बात होगा. So you know, actually Sharmishta is very fond of the whole entire family, and whenever any film of the Khan family comes, she's the first one First to go person and to go. watch it. Yeah. So ये इसमें भी थोड़ा सा बहुत अच्छा, you know, we had a chat over it and all that. So क्या बात है. yeah, so it was very nice, and that set, that place, that everything was so beautiful that we had a lovely time. और बहुत मतलब एक लेंदी स्केड्यूल था, तो सुबह से रात तक हम लोग शूट करते थे. अरबाज जी मुझे बोलते थे कि यू नो लाइक मैं थक जाता हूँ, रितु तुम नहीं थकती हो. थकती है. शी डज इट, एंड उसके बाद वापस जाती है कैलकाटा शूट करके, फिर वापस आती थी. लेकिन मूली इज लाइक अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, यू नो द होल जर्नी इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज फ्रॉम अहमदाबाद वी हैव टू टेक अनदर 3 hours जर्नी टू that place, but great place. बट उनके लिए ये नया इन्फॉर्मेशन है कि बंगाल में जाके व्हेन यू वर यू नो राइजिंग, आप तो बांग्लादेश जाके शूट करके आते थे, फिर अचानक कोलकाता आते थे. सो यू हैव डन दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, राइट? सो कंसिस्टेंसी डिजर्व दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट. सर आपसे आखिरी सवाल, एंड देन आई विल कम टू मैम का आखिरी सवाल, वो ये है कि दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर दीज काइंड ऑफ हॉरर ओरिएंटेड स्टोरीज टू कम आउट, राइट? लिटरली थ्राइव कर रहा है. डू यू थिंक दैट टाइमिंग इज ऑल्सो, एक तो हो गया स्क्रिप्ट एंड कंटेंट, वो सब तो है ही, बट ऑल्सो द टाइमिंग मैटर्स, राइट? कभी कभी कहानी अच्छा होता है, कास्ट अच्छा होता है, बट शायद टाइमिंग गलत बैठ जाता है. यू थिंक द टाइमिंग इज ऑल्सो परफेक्ट फॉर दिस काइंड ऑफ अ फिल्म? बहुत ज़्यादा परफेक्ट है. अभी यदि आप किसी से भी पूछ लेंगे, किसी भी आदमी पहले से, हैलोवीन गया. हाँ, और यदि फिल्म इंडस्ट्री की बातचीत करें तो बोले अभी हॉरर का टाइम चल रहा है, लोग बोलते हैं. तो उसका एक बस बना हुआ है हर तरफ से, वो आ रही. तो आप कंपेयर करने के लिए 10 मूवी है तो उसको देखने की लालसा बढ़ती है कि वो ये गई थी, ये देखते हैं ये कैसी है. तो देखने के लिए लालसा बढ़ना हमारे लिए प्लस पॉइंट है. एब्सोल्युटली. एंड मैम आपसे आखिरी सवाल बिफोर आई एंड द कॉन्वर्सेशन, वो ये है कि फ्रॉम द हिंदी एंटरटेनमेंट स्पेस, 3 लोग जिनको आप सबसे पहले आपका पिक्चर दिखाना चाहोगे वंस इट रिलीजेस और एट द प्रीमियर में भी. The people who have done more of horror, Yeah. I would love to show them the film, like Ram Gopal Verma, Yeah. then Vikram Bhatt, and Mahesh Bhatt, of course, and I think who else? Anybody you can remember, anybody who has done great horror films. Stree का जो director, Yes, अमर कौशिक जी. Amar Kaushik ji. Yeah, I think We super will stuff. definitely want them to come, Yeah. and everybody from the Yeah. industry. I For think sure. हॉरर एक्सपर्ट्स का एक साथ महफिल जमने वाला है. बट देन आप लोग अपना महफिल जमाओ, पिक्चर देखो सिनेमा हॉल में, अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में. ये रहा डेट, 14 नवंबर इट इज़. काल त्रिगोरी है नाम पिक्चर का. मैं मेरे तरफ से बायस्ड होके बोलूँ तो मैम है, वही काफ़ी रीज़न है. लेकिन मैं थोड़ा सा और बियॉन्ड माई बायसनेस अगर मैं बोलूँ, सो इट्स गॉट अ फैंटास्टिक कास्ट एज वेल. अरबाज जी भी है. इट्स डायरेक्टेड बाय नितिन जी ओवर हियर. अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज गॉन इनटू इट. सो प्लीज डू वॉच द मूवी इन cinemas near you. And also if you like this conversation, it's not as long as what we did the last time with ma'am, but then chalega, we spoke और about the मैं film. एक बात करना Yes, चाहती हूँ ma'am. बीच में, वो है एक ये महीना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये महीने में मेरा बर्थडे भी है. क्या बात है. और ये महीने में बहुत एक और भी दुख की समाचार है कि ये महीने में मेरी मम्मी चली गई थी लास्ट year, yeah. सो आई थिंक मम्मी की बहुत आशीर्वाद होगी इस फिल्म के लिए. और इस फिल्म रिलीज़ के जस्ट पहले ही मम्मी की बरसी है, तो आई थिंक विल गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम हर. टचवुड, ऊपर वाले की आशीर्वाद है. दैट इज व्हाट इट इज. एंड सर मेरे साथ दो थोड़ा हैप्पी बर्थडे गाओगे मेरे साथ मैम के लिए? हैप्पी बर्थडे टू यू एंड वी लव यू. थैंक यू सो मच. क्विकली खत्म करना पड़ेगा इसलिए. बट दैट्स अ रैप ऑन द सनी जी शो. दिस इज योर होस्ट शुभजीत विद द वन एंड ओनली इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऋतुपर्णा मैम एंड नितिन सर ओवर हियर. मूवी देखो, पिक्चर देखो, इंटरव्यू देखो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस. थैंक यू थैंक सो यू मच. रोहित.